بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم نولے کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کا زیر بحث موضوع اس مسجد آیا صوفیہ کے متعلق ہے جس کے سٹیٹس کو حالیہ ہی میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے حسب روایت التماس ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آیا صوفیہ قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے، لاطینی میں اس کو سنکتا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جو ماضی میں یونانی راسخ العقیدہ مسیحی جامع کیتھیڈرل، رومی کیتھولک کیتھیڈرل، عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ 10 جولائی 2020 کو صدر ترکی نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس مسجد کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والے جائے عبادت تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ بھی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل دی گئی۔ اگر اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائی کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریک، جس کو انگلش میں پیٹریارک کہا جاتا ہے، اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگین تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا جس کو پوپ یا انگلش میں پاپا کہتے ہیں۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سن 1054 میں پوری عیسائی برادری 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، ایک ایسٹرن جبکہ دوسرا رومن کیتھولک۔ یہ 2 گروہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور آج تک اسی طرح موجود ہیں۔ پوپ ان لوگوں کا سلیکٹ ہوتا ہے جن کی دنیا میں میجورٹی ہوتی ہے۔ اگر مسیحی اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے اس مسجد آیا صوفیہ کو دیکھا جائے تو آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریک یعنی پیٹریارک کہلاتا تھا اس میں مقیم رہتا تھا، لہذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں قدیم ترین تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اس رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطونیہ سے ہٹا کر قسطنطنیہ رکھ دیا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال سے یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی روحانی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ تعمیر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قسطنطین نے اس جگہ سن 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا۔ اس کی جگہ قیصر جسٹنٹین اول نے سن 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ اسلامی فتح کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جب سن
1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई, तो इस शहर के मजहबी रहनुमा और रासिख़ुल अक़ीदा ईसाइयों ने इस कलीसा में इस ख्याल से पनाह ले ली थी कि कम अज़ कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। मशहूर अंग्रेज़ मौर्रख एडवर्ड गिबन मंजर कशी करते हुए लिखता है, गिरजा की तमाम ज़मीनी और बलाई गैलरियाँ बापों, शोहरों, औरतों, बच्चों, पादरियों, रहबों और कुंवारी लड़कियों से इस तरह भर गई थीं कि कलीसा के अंदर दाखिला नामुमकिन हो गया था। ये सब लोग इस मुक़द्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे, जैसे वो ज़माना दराज से एक मुल्ला अल्लाह की लाहौती इमारत समझते आए थे। ये सब एक इस तरह परताज़ इल्हाम की वजह से था, जिसमें ये झूठी बिशारत थी कि जब तुर्क दुश्मन इस सतून यानी कुस्तंतीन सतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाज़िल होगा और इस आसमानी हथियार के ज़रिए सुल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो इस वक्त इस सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फ़ौज इस सतून से भी आगे बढ़कर सूफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुँच गए थे। ना कोई आसमान से फरिश्ता आया, ना रोमियों की शिकस्त फतह में बदली। कलीसा में जमा ईसाइयों का हजूम आखिरी वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतज़र रहा। इलाकर सुल्तान मोहम्मद फातेह अंदर दाखिल हो गए और सबके जान माल और मज़हबी आज़ादी की ज़मानत थी। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में ही अदा करेंगे। इसी दिन फतह हुआ और इसी सरजमीन पर नमाज ज़ोहर अदा की गई। इसके बाद पहला जुमा भी इसी में पढ़ा गया। आया सूफिया को अगर मस्जिद के तौर पर देखा जाए तो कुस्तुनतुनिया चूँकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बज़ोर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत न थे और इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अक़ीदे वबस्ता थे उन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनांचे उसे माल के ज़रिए खरीदा गया और इसमें मौजूद रस्मों और तस्वीर को मिटा और हटा दिया गया। महराब किबला तरफ कर दिया गया। सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफा कर दिया। इसके बाद ये मस्जिद जामिया आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्ता नमाज अदा होती रही। जगह को खरीदने के हवाले से अगर देखा जाए तो फतह कुस्तुनतुनिया के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी कोई जमागाह और इबादतगाह न थी। इसलिए सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसा के इस तारीखी मजहबी मरकज़ को मस्जिद में बनाने का इरादा किया। चनाचे सुल्तान ने इस इमारत को और आसपास की ज़मीन को अपने ज़ाती माल से ही खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के रहबों को दी। अलावाज़ी सुल्तान ने इसको मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। इस इमारत और ज़मीन को मुसलमानों के लिए मुकम्मल वक़फ़ करने के बाद इसके दस्तावेज़ आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत इंकरा में मौजूद हैं। इमारत को अगर देखा जाए तो आया सूफिया के सामने एक खूबसूरत चमन है। इसके बाद इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। दरवाजे के दोनों तरफ वो दोनों पत्थर नस्ब है जहाँ पहरेदार बैठ कर पहरा देते थे। अंदर वसी हाल है जो मुरब्बा शक्ल का है। इसकी वसत गुलाम गर्दश और महराब को छोड़कर जनूबन शुमालन 235 फुट है। बीच के गुंबद का कुतर 107 फुट और छत की ऊंचाई 185 फुट है। पूरी इमारत में 170 सतून हैं। चारों कोनों में मुसलमानों ने 6 डालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की नहायत खुशखती के साथ नक्श किए हैं। छत की तरफ खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं जिनमें अरबी ख़त व किताब नक्श व नगार किया गया है। आया सूफिया को अगर अजायब घर के तौर पर देखा जाए तो आया सूफिया की इमारत फतह कुस्तुनतुनिया के बाद 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा तुर्की का सरबराह बना तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके इसे अजायब घर यानी नुमाइशगाह बना दिया।
जुलाई सन 2020 में इसे दोबारा सन 1935 से कबल वाली हैसियत दे दी गई है। मस्जिद की बहाली को अगर देखा जाए तो 31 मई सन 2014 को तुर्की में एक तंजीम नौजवानाने अनातोलिया के नाम से मौजूद है। इसने मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने की मुहिम चलाई। इस तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों के तायदी दस्तों को जमा कर लिया है, लेकिन इस वक्त के वज़ीर आज़म के मशीरान ने बताया कि अभी आया सूफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। 10 जुलाई सन 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद मंजूर दी और अजायब घर की हैसियत मंसूब करके सरकारी तौर पर मस्जिदी बहाली का फैसला सादर किया। बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सूफिया की मस्जिद बहाली के फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। इस फैसले के बाद पूरे यूरोप में एक हंगामा खड़ा हो गया है। वो कहते हैं कि सदर तैयब एर्दोगान ने करोड़ों ईसाइयों के जज्बात को मजबूर किया है। चर्च के कायदीन ने कहा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तुर्की के लाखों ईसाइयों की आवाज़ों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हाया सूफिया के म्यूज़ियम की हैसियत को मंसूब करने के फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। यूनेस्को ने कहा है कि उसकी आलमी सकाफती विरसा कमेटी हाया सूफिया की हैसियत पर नज़रसानी करेगी। इनका कहना था कि अफसोसनाक बात यह है कि तुर्की का फैसला इससे पहले मुकालमे का कोई मौजू भी नहीं था और ना ही कोई नोटिफिकेशन था। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि तुर्क कौंसिल ऑफ स्टेट का जदीद तुर्की के एक अहम तारीखी फैसले को ख़त्म करने और सदर तैयब एर्दोगान की जानब से इस यादगार को मजहबी अमूर ईवान सदर के इंतजाम के तहत रखने का फैसला अफसोसनाक है। इसी तरह अमेरिका का जो रद्द अमल आया है उसमें महकमा खारजा के तर्जुमान मॉर्गन और टॉगस ने एक बयान में कहा, हम तुर्क हुकूमत की तरफ से हाया सूफिया की हैसियत तब्दील करने के फैसले से मायूस हैं। हम समझते हैं कि तुर्क हुकूमत तमाम ज़ायरीन के लिए हाया सूफिया तक रसाई बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है और हाया सूफिया की मुसलसल जिम्मेदारी के लिए अपने मनसूबों को सुनने के मुंतज़र हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये सब के लिए रुकावट के बगैर काबिल रसाई है। इसी तरह यूनान में जो बयान दिया गया है उसने कहा है कि यूनान ने तुर्की के इस इक़दाम को महज़ब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया है। रूसी वानेबाला पार्लियामेंट में अमूर खारजा कमेटी के नायब सरबराह व्लादिमीर ने भी कहा है कि ये तुर्की की सबसे बड़ी गलती होगी कि इस म्यूज़ियम को मस्जिद का दर्जा दिया गया। फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने इस फैसले का खैर मकदूम किया है और कहा है कि हाया सूफिया को बतौर मस्जिद खोलने की इजाज़त देने वाला सदर तैयब एर्दोगान का फैसला इंतहाई खैर मकदम का हमल है। तुर्क जमहूरिया शुमाली की दृष्टि से सिर्फ तुर्की ही तस्लीम करता है हाया सूफिया को एक मस्जिद के तौर पर खोलने पर पुरुमीद और खुश है। दोस्तों, ये थी सारी मालूमात कि आया सूफिया किस तरह अपनी पोजीशन तब्दील करती रही है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।